Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we have completed lesson 1 from our new English NCERT book Purvi of class 7th. Today we are going to start with the next poem, that is Try Again by Eliza Cook. So let's get started. We will be doing reading, explanation and word meanings of this poem in this video. Try again. Let us do these activities before we read. So first we are going to start with these activities before we are going to read the poem. Who inspires you to do your best? So you have to write कि आपको कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है बेस्ट करने के लिए. So you can write my parents or my teacher inspire me to do my best as they motivate and encourages me. Okay. Work in pairs, identify what you see in the pictures given below. What can we learn from them? Share your answer with your classmates and the teacher. Now you can see there are 6 pictures over here and you have to work in pair and identify that what you see in the pictures and what do you learn from these pictures. So let us see what is the first picture. The first picture is of honeybee. From honeybee we learn to work in teams. We learn teamwork. Second picture is of, if you can see, it is of a spider. Spider help us to learn that we should never give up. Third picture is of birds who are flying in the sky. They tell us to be free. They tell us about freedom. Fourth picture is of a sparrow, or you can say a bird who is making the nest. So from this bird we learn that we should do careful planning while, like, the bird is making the nest and doing the careful planning over here. So in the same way we learn from sparrow or the bird who is making the nest that careful planning. Fifth picture is of ants. Ants teach us to work in teams and the power of unity. Sixth picture, you can see a tree which is full of fruits. It teaches us strength and patience. So these were the 2 activities which we were supposed to do before reading the poem. Now let us read. This is the poem which we are going to read. The name of the poem is Try Again. So as the name only suggests you, in this poem we are going to read about a king, King Bruce, who was king of Scotland, and how he was disheartened and he was feeling hopeless and sad, why he was feeling that, and what actually happened which changed his mind. We are going to read in this book. Okay, there are some word meanings which we will read. First word over here is flung, which means to throw something suddenly and carelessly or with great force. Monarch, a king. Despair, hopelessness. Pondered, thought carefully. Clink, hold tightly. Filmy clue, here thin thread like web. Okay, so let us start reading the poem. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. So in these lines, if you can see, we are talking about King Bruce of Scotland. He flung himself down means, flung means होता है अपने आप को एकदम से गिरा देना, नीचे बैठ जाना. Why? Because you are hopeless or you are lonely or you are sad. ठीक है. So in these lines, poetess tells us that King Bruce of Scotland was he had been actually defeated in
in a kind of a battle. That is why he was very sad, hopeless, and he was in a lonely mood. वो अकेलापन फील कर रहा था. To think, it is true he was a monarch. ये ट्रू है, सही बात है कि वो एक किंग थे, एक किंग था और वो क्राउन पहनता था, क्योंकि किंग तो क्राउन पहनता ही है. बट हिज हार्ट, पर उसका जो हार्ट था, अंदर से जो दिल था ना, वो बहुत ज़्यादा सैड था. ठीक है, वो यही सोचता रहता था कि हाँ मैं एक किंग हूँ, क्योंकि एक किंग होना भी एक आपके अंदर एक प्रेशर होता है कि आपने जो डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं. ठीक है, उस वजह से जो है वो उनका जो हार्ट था बहुत, मतलब वो अपना जो हार्ट था, उनका हार्ट बहुत सिंग कर रहा था. क्यों? क्योंकि उनको अंदर ही अंदर कोई टेंशन थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसे बैटल्स थे जो वो डिफीट, जो जिसमें वो हार गए थे, और वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे बट वो कर नहीं पा रहे थे. सो मीनिंग ऑफ फ्लंग, फ्लंग का मीनिंग आपको बताया. जैसे कि कई बार हम भी जैसे बहुत सैड होते हैं तो हम एकदम से गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो भी ऐसे बहुत सैड थे, लोनली थे, और परेशान थे, होपलेस थे, इसलिए वो नीचे की तरफ बैठ गए. और वो एक किंग थे. इट इज़ ट्रू कि वो किंग थे, मोनार्क मतलब किंग, और उन्होंने क्राउन पहना हुआ था और क्राउन भी उनके पास था, बट उनका जो हार्ट था वो बहुत सिंग कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर से सैड थे, क्योंकि वो कई चीज़ें जो है वो करना चाहते थे जो वो नहीं कर पा रहे थे, और वो किसी बैटल फील्ड में भी हार गए थे. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. तो वो लोगों के लिए ग्रेट डीड मतलब कुछ अच्छा करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहे थे. टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ग्लैड मतलब कि खुश करने के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए वो चाहते थे कि ही वांटेड, ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर हिज पीपल, बट he was regularly defeated in the battles, so he was not able to make his people happy. He had tried and tried but could not succeed, and so he became quite sad. पूरी कोशिश करी पर फिर भी वो सक्सीड नहीं हो पाए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सैड थे. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be. He flung मतलब उन्होंने अपने आप को एक जगह बिठा दिया, एक काउच बना हुआ है जो, उस पर बिठा दिया, वो गिर गए वहाँ पर, और वो लो डिस्पेयर में थे. वो डिस्पेयर मीन्स कि बहुत ही होपलेस थे वो. एज ग्रीव्ड एज मैन मतलब जितना दुख, हद से ज़्यादा दुख था, एक जितना एक इंसान को दुख हो सकता है उतना उनको दुख था. एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आई विल गिव इट ऑल अप, ही सेड ही. सो थोड़ी देर बाद वो सोच कर, पॉन्डर्ड मतलब कि सोचना, बहुत गहरी सोच. जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर, हम जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो गहरी सोच हो जाती है. तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, और उन्होंने सोचा कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आई गिव इट अप, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, आई गिव इट अप. नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू. तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि एकदम से किंग ब्रूस की नज़र एक स्पाइडर पे पड़ी जो कि नीचे गिरा. विद इट सिल्कन, सिल्कन क्या यहाँ पर सिल्क की एक जो जैसे पतली सी जो एक तार, पतली सी जो एक वायर टाइप होती है वो. ठीक है, वो नीचे की तरफ गिरा. फिल्मी क्लू क्या है यहाँ पर, एक थ्रेड लाइक वेब. ठीक है, जिससे कि वो अटका होता है स्पाइडर. एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू. और किंग ने क्या किया, किंग जो है वो अपनी मिड्स का मतलब होता है बीच में, सोच को बीच में रोक दिया. जो वो सोच रहा था उसने उसको बीच में रोक दिया. अचानक से जैसे स्पाइडर जो है वो ऊपर से नीचे गिरा, तो एकदम से उसने अपनी जो सोच है उसको बीच में रोक दिया और स्पाइडर को देखने लगा. ठीक है, तो पोएट्स क्या बताना चाह रही है कि उस मोमेंट पे जैसे किंग जो है वो अपने बारे में जो सोच रहा था, जैसे ही स्पाइडर गिरा, द स्पाइडर फेल डाउन विद हिज fine thread cobweb from the roof, and the king stopped thinking and began to watch the movements of the spider. कि स्पाइडर अब क्या करेगा, ऊपर कैसे जाएगा. ठीक है, twas a long way up to the ceiling dome, twas it was, and it hung by a rope so fine that how it would get
to its cobweb home, King Bruce could not divine. Cobweb क्या होता है? मकड़ी का जाल, ठीक है। तो मतलब वो सीलिंग से, ऊपर से सीलिंग से जो है वो नीचे की तरफ लटक रहा था, धागे से लटक रहा था, रोप से, और वो रोप भी बहुत पतली सी थी जिससे वो लटक रहा था। तो हाउ ही वुड, अपनी कॉब वेब मतलब मकड़ी के जाले तक वो कैसे पहुंचेगा? किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, मतलब वो ये सोच रहा था कि कैसे वो अपने मतलब वापस मकड़ी के जाले तक जो है वो जाएगा, मतलब रूफ से लेकर ऊपर जो सीलिंग से लेकर वो नीचे तक आया है एक पतले से धागे के थ्रू, और वो अब वापस कैसे जाएगा? सो बिकॉज द डिस्टेंस, जो बहुत डिस्टेंस जो था स्पाइडर और जो रूफ थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, और जो धागा था वो बहुत ही पतला सा था। ओके, तो इसलिए जो किंग ब्रूस था वो ये सोच रहा था कि अब नेक्स्ट क्या होगा, ये अपने घर कैसे जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। Now we have some word meanings over here. Endeavor, to try hard. Dizzy, feeling of spinning around. Creep, move slowly and carefully. Toil, hard work. Strive, to make great effort. Steadily, continuously without stopping. Mounted, climbed up. Conquered, won. Disappear, absence of hope. Braced, got ready for something difficult. So let's read further. It soon began to cling and crawl straight up with great, strong endeavor. So अब स्पाइडर ने क्या करना शुरू किया? क्लिंग एंड क्रॉल। क्लिंग का मतलब क्या होता है? चिपकना। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। तो उसने क्या किया? अपनी जो वो जो वायर थी, उसकी जो थ्रेड थी, जो बहुत ही सॉफ्ट सी थ्रेड थी, उससे उसने चिपकना शुरू किया, और चिपक कर और रेंग कर वो अपने स्ट्रेट अप कहाँ पहुंचा? उसने कोशिश करी और वो अपने कॉब वेब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। डिफिकल्टी हो रही थी उसे, बट वो कोशिश कर रहा था। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, एकदम से वो नीचे आ गया। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नीचे आ गया। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, तो जैसे ग्राउंड के पास वो वापस से आ गया। तो पोएटेस क्या कह रही है कि स्पाइडर वंस टुक होल्ड ऑफ कॉबवेब थ्रेड, उसने कॉबवेब थ्रेड को पकड़ा, कोशिश करी क्लाइंब अप करने की, बट फिर दोबारा से स्लिप होकर वो ग्राउंड तक नीचे आ गया। up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint. तो अब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा था कोशिश करके। वंस अगेन इट वॉज रोजिंग अप अपर टू द अपर साइड, और कोई कंप्लेन नहीं की उसने, एक भी कंप्लेन नहीं की। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट, फिर से दोबारा वो नीचे की तरफ आके गिर गया, और अब इस बार आने के बाद वो डिजी और फेंट हो गया। डिजी मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा सर चकरा रहा है, तो वो भी ऐसा ही फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड। तो उसको ऐसा लगा कि जैसे वो उसका सर चकरा रहा है, और वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, तो पोएटेस क्या बता रही है कि स्पाइडर जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो फिर ग्राउंड पे आ जाता है, और कोई कंप्लेन नहीं करता, पर फिर दोबारा कोशिश करता है। इस टाइम वो जब नीचे गिरता है तो उसको डिजीनेस और फेंट, वो फेंट हो जाता है। इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर। अब नेक्स्ट क्या हुआ? अब नेक्स्ट उसका हेड जो है, अब वो फिर कोशिश करी उसने, स्टडी मतलब बिना रुके कॉन्टिन्यूसली चलते जाना। एंड ही ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, अब वो हाफ यार्ड और ऊपर तक जो है वो उसने क्लाइम किया। ट्वास अ delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. तो एक जो थ्रेड था वो इतना डेलिकेट था, और जो रास्ता था ना उसका ऊपर पहुंचने का, वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली डेंजरस था। ठीक है, तो वो जो वायर थी वो बहुत हल्की थी, डेलिकेट थी, और रास्ता बहुत मुश्किल था, ताकि उसकी जो फीट थी वो चल चढ़ के ऊपर थक गई थी। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, अब वो फिर से जो है वो दोबारा से नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, दोबारा नीचे नीचे गिरा वो।
हैंगिंग इन एयर, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड मतलब फिर कोशिश करी ऊपर जाने की, टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। मतलब पूरी कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, फिर कोशिश करता तेजी से ऊपर जाने की, फिर कभी धीरे से जाने की। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स उसने करे, 9 कोशिश उसने करी, 9 अटेम्प्ट करे उसने, बट विदाउट लूजिंग एनी टाइम इट मूव्ड अप अगेन। धीरे धीरे उसने 9 अटेम्प्ट्स करे अपने कॉब वेब तक रीच करने के लिए। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. So अब किंग ने क्या सोचा कि किंग ब्रूस जो है वो अपने आप से कह रहा था कि स्पाइडर जो है ना हैड फॉलन, इतनी बारी तो गिर चुका है वो, ठीक है। इट मस्ट हैव फाउंड आउट दैट कि वहाँ पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है, जहाँ वो पहुँचना चाहता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, इतनी कोशिश करने के बाद भी जो है वो सक्सीड नहीं हो रहा था वो, ठीक है। तो उसने पूरी कोशिश करी ऊपर क्लाइंब करने की, स्ट्राइव मतलब पूरी कोशिश, हम एफर्ट मारा ऊपर जाने के लिए, बट इट टॉयल्स सो हार्ड, टॉयल्स मतलब इतना हार्ड वर्क कर रहा है वो ऊपर जाने के लिए, बट फिर भी वो टम्बल्स मतलब हर बारी लुढ़क जाता है, गिर जाता है। तो बार बार वो जो है वो गिर जाता है। टॉयल मीन्स बहुत परिश्रम करना, और फिर भी वो बार बार गिर जाता है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, मी, इट्स एन एंशियस मिनट, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज cobweb door. Oh say, will he lose or win it? तो अब क्या हुआ, अब इंसेक्ट जो है ना स्पाइडर, वो एक बार फिर ऊपर गया, और अब ऐसा एंशियस मतलब होता है बेचैनी होना, एक ऐसा मोमेंट आया जब वो एक अटेम्प्ट में ही अपने कॉबवेब में पहुंच सकता था, 1 फुट अवे था वो। तो किंग को लग रहा था एक तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है कि क्या वो अपने कॉबवेब में पहुंच जाएगा, क्या वो सक्सीड होगा या वो फेल होगा, क्या करेगा, क्या वो लूज करेगा, क्या वो विन करेगा। स्टेडीली इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, स्टेडीली, कॉन्टिन्यूसली, विदाउट स्टॉपिंग। तो धीरे धीरे इंच बाय इंच, हायर बाय हायर जो है उसने जो है वो धीरे धीरे कर कर, श्योरली इंच बाय इंच गेन कर कर उसने क्या किया, उसने वो जो एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट। तो नेटिव कॉट क्या है यहाँ पर, नेटिव कॉट मतलब उसका कॉप है, ठीक है। तो एक बोल्ड उसने एक कोशिश और करी, लास्ट मोमेंट पे आकर उसने वो सारा डिस्टेंस कवर कर लिया, और जितनी भी डिफिकल्टी थी वो सब पीछे छोड़ दी। ब्रेवो द किंग क्राइड, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। तो ब्रेवो किसको बोला है यहाँ पे, स्पाइडर को बोला है। ब्रेवो का मतलब होता है कि शाबाशी देना। तो किंग जो है वो इतना ज़्यादा प्लीज हुआ था कि ही अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द स्पाइडर बाय सेइंग ब्रेवो मीन्स वेल डन, यू आर एबल टू रीच योर नेटिव कॉट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। तो ही सेड दैट ऑनर falls to those who are never discouraged by failures and they try again. The spider up there defied despair. तो स्पाइडर जो है डिफाइड यानी कि चुनौती देना, उसने क्या करा, उसने जो है डिफाइड डिसअपेयर, अपनी जो निराशा थी उसको ख़त्म करा। ही कॉन्कर्ड, और वो क्या किस पे जीत पाई उसने, एंड उसने अपने जो नेटिव कॉट तक पहुंचने पे जीत पाई, अपनी जो फेलियर था उसे सक्सेस में बदला। एंड वाई शुड नॉट आई, अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, किंग ने ये कहा, ठीक है। उसने क्या बोला कि पहले तो उसको अप्रिशिएट किया ब्रेवो बोल के, और फिर उसने कहा कि ऑल ऑनर, और ऑनर किसके पास जाता है, उनके पास, टू दोज हु ट्राई। जैसे स्पाइडर ने अपनी जो निराशा थी वो ख़त्म करी, अपने आप को मतलब जिता दिया, क्यों फिर ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेज्ड हिज माइंड, ब्रेज मतलब गॉट रेडी फॉर समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने आप को जो है वो जो ब्रूस था उसने अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार किया। किस चीज़ के लिए तैयार किया,
उसने अपने आप को जो है जो एनिमीज़ के अगेंस्ट जैसे जो फाइट करते हैं उसके लिए, बैटल्स के लिए तैयार किया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और गॉसिप्स मतलब जो स्टोरीज हमने जो सुनी है उसमें हमें पता लगता है कि दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, तो उसने एक बार और कोशिश करी एंड दैट टाइम डिड नॉट फॉल, और उस टाइम वो हारा नहीं और वो जीत गए। ठीक है, दिस poem is written by poetess Eliza Hook. So I hope you have understood this poem. This poem is about the King Bruce of Scotland, who was trying to achieve a great deed for his people, but he failed. So once he saw a spider who was trying hard to get the victory and going back to his cobweb. Seeing him, he was inspired, and he also tried once again and understood the importance of hard work in life. So I hope you have understood the poem. Now I'll get back to you in my next video with back exercise question answers of this poem. So up till then, take good care of yourself. Goodbye.